Hello student, how are you? I hope you are all good. Okay, today we are going to learn an important concept in physics known as scalar and vector quantities. Before I am starting this video, I want to show you all the slides which I will discuss later. Let's see. First, the descriptions of scalar and vector quantities, and then second, introductions, physical quantities, scalar quantities, and vector quantities. Then what is a physical quantity? I will discuss briefly what is actually physical quantity, what is means, okay, and what is scalar quantity, real life example of scalar quantity. Then vector quantities, what do you mean by vector quantities? I will take some example which you help to uh, understand the real meaning of vector and vector quantities. Understanding vector with example, daily life example I will take, so that you can relate with your daily life and vector representations. Then this lecture will end. Today I took a very small topic which is vector and scalar quantities. Okay, now starting this video. First, in our daily life, we come across many physical quantity such as distance, speed, mass, force, time, and velocity. This quantity help us describe and understand the physical world around us. Okay. However, not all physical quantities are the same. As you know that all physical quantities are not same. Some quantities can be completely described by their magnitude or numerical value. Okay, alone, while others require both magnitude as well as direction. I will detail explanation later, but what I am teaching you today. Before I giving you a short clip which help you to understand better. Okay, so what I'm saying, while other require both magnitude and direction for a complete description, or while some require only magnitude. For example, if I say that a car is moving at a speed of 60 kilometer per hour. First, I take a pen. First, 60 kilometer per hour. Suppose a car is moving with a 60 kilometer per hour. The value tells us what? How fast is moving. That means what I'm saying you. This value gives what I said earlier. This is the speed of any vehicle or any car, which is 60 kilometer per hour. So the value tells us what? How fast is moving. That means what I'm saying कि कार कितनी स्पीड चल रही है. Getting my point? How fast it is moving मतलब कार कितनी स्पीड चल रही है. But if I say that the car is moving at 60 kilometer hour towards any direction, let's suppose north direction. Okay, that means what I'm saying, uh, again I say 60 kilometer per hour towards north. If I say 60 kilometer per hour towards north, basically the difference created here, what difference created here, when i when I told you that the car is moving with 60 kilometer per hour, that means the motion of the, that means the first description say that what is the speed of the car, only speed gives, not any direction. That means the value which is 60 kilometer hour, only the motion of that car I took in example. But in the second case, in the second description I took that in 60 kilometer per hour towards the direction where? North. That means both these two are very different from each other. Okay, not both are same. What I'm saying, both are not same. Okay, I am providing additional information about its direction in this case. This difference forms the basis of classifying physical quantity into two categories. What I am saying, the physical quantities in this phenomena are categorized into two different parts, which is vector quantities and one is scalar quantity. That's the topic today which I am discussing now. Okay, by this end of this lesson, by the end of this lesson, what will you learn? You will be able to define scalar and vector quantities, differentiate between them, and apply this concept to your
रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इन टू द वर्ल्ड ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, now this is our introductory class which I have early discussed scalar and vector quantities presented by. And introduction, what I am studying today: physical quantities, scalar quantities and vector quantities. I have taken the difference between 60 km per hour and 60 km per hour with the direction of north, towards north. Okay, I will later discuss what is a physical quantity. These are okay. So now starting this lecture. Now, physical quantity. Physical quantity means what? Physical quantity means what? Physical quantity where I'm taking the third slide. Physical quantity means where magnitude and unit are comes together. That means what I'm saying to you कि physical quantity उसको बोलते हैं जहाँ पर आपके magnitude और unit उसके साथ रहते हैं. क्या रहते हैं? यूनिट रहते हैं. क्या बोल रहे हैं हम? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई पूछे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको आप बोलिएगा सिंपली फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर और विथ व्हेन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट कम्स टुगेदर. ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, मेजर किया जा सकता है या मेजर कर सकते हैं. हर फिजिकल क्वांटिटी की दो पार्ट्स होते हैं. एक मैग्नीट्यूड, हम बता दें यहाँ पर एडिशन क्यों बताएं, क्योंकि ये दोनों साथ में आएंगे. एक आपका मैग्नीट्यूड रहेगा एंड वन इज यूनिट रहेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब आपको डरना नहीं इस मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड कुछ है नहीं. मैग्नीट्यूड एक वैल्यू होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. इससे आपको डरना नहीं है. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या होता है जी? कुछ नहीं, नंबर 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 60 हो गया. दिस ऑल्स आर न्यूमेरिकल वैल्यू. दैट मीन्स आई एम सेइंग टू यू दिस ऑल आर मैग्नीट्यूड. व्हाट आर मैग्नीट्यूड? क्या है ये सब? मैग्नीट्यूड है. ठीक है, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है. और इसके साथ एक यूनिट रहेगा. यूनिट क्या होता है? जो एक क्या बोलेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है कि वो मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है. मतलब वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ कौन सा यूनिट आ रहा है. ठीक है, मतलब आपको बता रहे हैं. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, लेंथ है. लेंथ यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ. क्या दिया हुआ? 10 मीटर. तो 10 आपको क्या दिख रहा है? ये आपको अभी ये बताया न्यूमेरिकल वैल्यू है. दैट मीन्स ये क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है. और ये आपका मीटर जो है ये आपका यूनिट है. यूनिट इसको क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है किसी दूसरे यूनिट से, यानी कि दूसरे मेजरमेंट से ये इसको सेपरेट कर रहा है. यानी कि यहाँ पर 10 मीटर है, वहीं अगर यहाँ पर 10 किलोग्राम रहता, दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर 10 किलोग्राम रहता तो ये 10 तो सेम है दोनों में, दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, बट यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस है जिसके कारण से ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों में क्रिएट होता है. 10 मीटर और 10 किलोग्राम दोनों काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, तो ये डिफरेंट क्रिएट कहाँ से आया? इस यूनिट के थ्रू आया. ठीक है, समझ में आ रहा. उसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल देते हैं मास. मास में क्या? 5 किलोग्राम. तो ये 5 क्या है आपका? 5 है आपका क्या? मैग्नीट्यूड. और किलोग्राम है क्या आपका? यूनिट. जैसे टाइम हो गया 20 सेकेंड, तो 20 हो गया आपका मैग्नीट्यूड और सेकंड हो गया आपका क्या? यूनिट. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दो चीज़ से मिलकर बना होता है. एक होता है मैग्नीट्यूड और उसके पास होता है एक यूनिट. ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? फिजिकल क्वांटिटी. दैट मीन्स दे कम टुगेदर इन ए सिंगल value. Okay, magnitude as well as unit. Magnitude gives the value of only gives the numerical value, and units give the specific measurement unit. Okay, that means meter, kilogram, liter. These all are what? These all are what? Only unit. Okay, both are come together in a single unit. Okay, physical quantity. Getting my point? Then goes to a next slide. Scalar quantity, physical quantity, then it's classified into two categories, which are vector quantities and then as well as scalar quantities. First I will discuss scalar quantity. What are scalar quantity? A quantity having only magnitude and no direction. देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके साथ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि यहाँ पर यूनिट मतलब डायरेक्शन कुछ नहीं होता. अब आप बोलेगा डायरेक्शन क्या होता है सर? तो डायरेक्शन अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में जैसे एक एग्जांपल लिए था ना, ये 60 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है. एक 60 किलोमीटर पर आवर क्या बता रहा है? ओनली मोशंस को बता रहा है. ये किसको बता रहा है? ओनली मोशंस को बता रहा है. ठीक है, ओनली मोशंस को बता रहा है. और ये क्या बता रहा है आपको? मोशंस के साथ डायरेक्शन को भी बता रहा है. मोशन विथ डायरेक्शंस को बता रहा है. क्या बता रहा? विथ डायरेक्शन को बता रहा है. ठीक है, तो ये 60 किलोमीटर ओनली मोशंस बट नॉट एनी डायरेक्शन, एंड 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉट मोशन विथ डायरेक्शन. ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है. तो इसी यहाँ पर इसीलिए ये फिनोमिना आता है स्केलर और
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग उस स्लाइड में जाते हैं जहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, मतलब ये वाला जो वैल्यू है आपका फर्स्ट वाला, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है, ये जो ओनली मोशन बता रहा था, वही आपका यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पर कोई डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए कोई कार 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, तो ये ओनली क्या बता रहा है, ये आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन इसमें यूनिट है बट मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन इन द सेंस मतलब वो जा किधर रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन किधर जा रहा है, मतलब वो तो मोशन कर रहा है, तो मोशन कहाँ कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर स्पेसिफिक कुछ दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ओनली उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ना कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। उसका एग्जाम्पल कि आपके पास मास है, स्केलर क्वांटिटी, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। कभी हम लोग बोलते हैं 10 किलोग्राम नॉर्थ, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है, तो क्या मुझे नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट बताना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ वैल्यू ही इनफ होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे टाइम, कभी हम लोग बोलते हैं क्या, ए भाई 10 सेकेंड हो रहा है, 10:10 हो रहा है नॉर्थ की ओर, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग। कभी भी टाइम अगर बोलना रहता तो हम लोग क्लियर बता देते हैं, 10 बज रहा, 12 बज रहा, 11 बज रहा, 9 बज रहा है, ऐसा थोड़ी बोलते भाई। अरे भाई 9:05 अभी ईस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर है, साउथ की ओर है, ऐसा कुछ क्लास मतलब ये नहीं होता, ठीक है, डिस्कशन नहीं होता। तो ये सब क्या होता है, ओनली स्केलर क्वांटिटी, ऑल आर इंक्लूड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टेम्परेचर कभी हम लोग नहीं बोलते, जैसे 45 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये कभी हम लोग बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। रियल लाइफ में भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी हर जगह होता है। देखिए जैसे अगर आपको मम्मी बोलती है कि 5 किलो चावल लेके आओ, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि अगर आपको बोलेगा 5 किलोग्राम चावल नॉर्थ की ओर लेके आओ, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। अगर डॉक्टर बोलता है कि बॉडी टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है, तो आप लोग वहाँ पर क्या बोलेगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, इसलिए ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस के समय कभी आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे कोई बोलता है मैं आज 10 किलोमीटर चला, तो क्या हम लोग पूछते हैं कि 10 किलोमीटर किधर चला, या फिर मैं आज 5 किलोमीटर रन किया, तो मैंने बोलूँगा क्या किधर रन किया आप? तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्पीड भी हम लोग क्या स्केलर क्वांटिटी कभी बोलते हैं क्या, आपका कार का स्पीड कितना है, तो वो सिंपल बता देगा 40 किलोमीटर आवर, 30 किलोमीटर आवर। ये कभी वो बोलेगा क्या 40 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ? नहीं बोलेगा। एनर्जी भी क्या होता है आपका, सब स्केलर क्वांटिटी होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखिएगा, मिल्क 2 लीटर लेके आ रहे हैं हम लोग, राइस 5 किलोग्राम, टेम्परेचर है, यहाँ पर टाइम है, ये सब क्या है आपका, सब क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हैविंग बोथ, यहाँ पर देखिए दोनों होता है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है, एक डायरेक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पर्सन 20 मीटर हम बोलेंगे, 20 मीटर वो किधर गया, ईस्ट की ओर गया, ठीक है, ईस्ट की ओर, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो 20 मीटर, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा कि उसका जो 20 डिस्टेंस था वो आपका किधर था, ईस्ट की ओर था। तो उस केस में उस डिस्टेंस के जगह पर हम लोग उसको क्या क्लासीफाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर वो मूवमेंट किया 20 मीटर, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों? उसके पास एक डायरेक्शन रहेगा, क्या रहेगा, ये जो ईस्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो आपका ये जो 20 है, ये आपके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें रहेगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में भी कंफ्यूज होता है, वो भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में। वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब दोनों में क्वाइट डिफरेंट है ना, बहुत डिफरेंस है। एक में डायरेक्शन रहेगा, एक में डायरेक्शन नहीं रहेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा आपका, डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या एक क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह एक्सेलरेशन भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सब हम बाद में सब अच्छा से डिस्कस करेंगे, सारा प्रूव करके, ठीक है, ग्राफ मेथड सारा चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। फोर्स हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे लेटर, ओके। तो अभी हम लोग सिर्फ उसका मतलब हम लोग क्या टॉपिक देख रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं आपका इस अंडरस्टैंडिंग वेक्टर विथ एग्जांपल। तो देखिए स्टूडेंट वर्क 5 मीटर ईस्ट, ये देखिए स्पेसिफिक दिया हुआ है। ईस्ट क्या आपका डायरेक्शन हो गया, ये क्या है डायरेक्शन, ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो दोनों आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर में हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें भी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड चाहिए। स्पीड में क्या चाहिए, ओनली और मैग्नीट्यूड चाहिए। स्केलर में क्या चाहिए, ओनली और मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक से डिनोट करते हैं, तो उसके ऊपर जो एक एरो होता है, उसी एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं या वेक्टर क्वांटिटी। ये जो एस दिखा रहा है, ये एस कुछ नहीं है बल्कि ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, एस के ऊपर जो एरो है, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, ठीक है। ये एरो बताता है कि वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल ये जो लेंथ होता है एरो का, इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। सॉरी रुकिए, इसको फर्स्ट आई विल इरेज दिस। ये जो आपका एरो लाइन होता है, लेंथ होता है, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। और उसके बाद जो ये जो एरो बनाते हैं, ठीक है, एरो हेड, ये आपका डायरेक्शन का बताता है। ये भी दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक लेंथ प्लस एक एरो। ये लेंथ क्या बताता है आपका, आपका मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताया नहीं जाता स्कूल में, हम बता दे रहे हैं। ये जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो एरो होता है, एरो हेड, वो आपका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्या, कौन सा डायरेक्शन जी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको। तो आपको समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, आपका कोई आपका डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, और वेक्टर में डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से दिखाते हैं, ठीक है। एरो में ये लेंथ वाला पार्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, और आपका जो ये एरो हेड होता है वो आपका क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या क्या डिस्कस किया स्टूडेंट, क्या क्या डिस्कस किया हम लोग। फर्स्ट देखिए आपका दोनों के बीच में डिफरेंस, इंट्रोडक्शन दिए। उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, कितने आपका सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, ठीक है, वो सब बताएंगे, 7 और 2 उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट स्लाइड में स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन को समझाएं, क्या एग्जांपल है वो बताएं, वेक्टर क्वांटिटी के क्या होता है वो बताएं हम लोग। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल बताएं वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को बताएं। उसके बाद ये लेक्चर इंड हो गया, ठीक है, इंड हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल टेक ऑल द सेलिना पब्लिकेशन टॉपिक in my YouTube channel, so please subscribe this channel and share with your friends so that you can utilize your you can utilize this channel. Okay, thank you everyone.